Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about the topic that's types of farming. Types of farming is chapter number 4, agriculture. Very interesting topic we are reading today about agriculture. What is agriculture? I have explained it well in the previous video. Agriculture is a primary activity. Agriculture has come from the Latin word, it is a Latin word agar or agri. It is a Latin word agar or agri, which means soil, and cultivation means to cultivate or tilling of soil. So, dear students, whatever we use today mostly come from the earth. If we talk about the clothes we wear, so where does these clothes have come from? We are wearing different types of clothes. So if we think deeply about these things, where does these things have come from? Whether it is clothes, whether it is our shelter, we are making our house. Where does we get these type of food? Where does we get these type of clothes? How we get them? Where from we get them? Different types of things we use today. Your copies, your pencils, your sharpeners, your bag, and your books. Where does these all things come from? If we think about these things, mainly these things come from the earth. So mainly these things come from the earth, whether it is a production, whether it is extraction. So many types of things we get from extracting the earth, digging the earth. We have also read about these things that many types of methods take place when we are extracting earth, when we are digging earth. Open cast mining is going on at that time, and shaft mining is another method, coiling is another method. So different types of minerals lying beneath the earth we get, and then we extract them for our different types of uses, different types of purposes. uh, and some are the productions we use for our domestic purposes, for feeding the family, getting the crops, getting vegetables, flowers, or fodder for our livestock. We all get this type of production that's called extraction and production. We get this from the earth. So all this is about agriculture. So agriculture is a primary activity. Whether we are growing fruits, whether we are growing crops, whether we are growing vegetables, or growing fodder for our livestock, all these we get from the earth. And the first activity that comes into this involves, that is primary, that's agriculture. That's agriculture. And agriculture means extraction and production of natural resources by doing a scientific way, or using our skills to get these or to obtain this from the earth. After that, we come to know about the second activity, that was secondary activities. So, secondary activity, what do you know about secondary activity? We have learned it, explained it well, that secondary activity involves the processing or manufacturing. There are two processes, processing or manufacturing. When we have get these things from the earth, or inside the earth, or above the earth, a type of production or a type of mineral has we extracted it. So now the next step comes manufacturing. They are in raw form at that time, and we now the second activity involves manufacturing or processing. इसमें क्या मेन इन्वॉल्व होते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो हमको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन उनकी होती है, इनको निकालते हैं, उसके बाद उनको हम इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद पहले उनकी दूसरी जो एक्टिविटी है उसमें वो, यानी कि उसको हम तैयार करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। कोई भी चीज़ जो हमने अर्थ से निकाली, ज़मीन से निकाली, नाउ द सेकंड प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, उसको तैयार करना, इस्तेमाल के काबिल बनाना, हमारे इस्तेमाल के काबिल बनाना। हमने चीज़ जो हासिल की है तो उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो दैट सेकेंडरी एक्टिविटी। इसमें जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन है, उसको ठीक करते हैं। उसके बाद हम नई चीज़ें बनाते हैं। बेकिंग ब्रेड है जिस तरीके से, या वीविंग क्लॉथ है, तो जो एक प्रोसेस होती है, एक अमल होती है। तो उसके बाद जो कॉटन होगा, या वूल होगा, या सिल्क होगा, तो उसके बाद दूसरा अमल इसका होता है कि हम इसको तैयार करते हैं, कपड़े की शक्ल देते हैं, शेप देते हैं, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको वीविंग ऑफ क्लॉथ कहते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरी अमल होती है। और तीसरी अमल जो इसकी होती है, तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी,
क्योंकि इससे हम पैसा जनरेट करते हैं, हमारी जो लिवलीहुड है, हम पैसा अर्न करते हैं। तो तीसरी एक्टिविटी जो इसमें इस्तेमाल होती है वो होती है टेरिशरी एक्टिविटी। तो ये इसके बारे में आपने पढ़ा कि ये प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। ये प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी? प्राइमरी एक्टिविटी एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आता है, या गैदरिंग आती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या है? प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो उसके बाद इन दो चीज़ों को मिलाकर, यानी कि एक तो हमने प्रोडक्शन निकाली, हमने एक्सट्रैक्शन भी किया, या उसके बाद हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, तो उसके बाद ये तैयार हो गया। अब तीसरी इन्वॉल्व होगी कि अब ये आप तक लाना है, ये हमारे घरों तक लाना है, या यानी कि होलसेल जो लोग होते हैं जो उसको बेचते हैं उन तक लाना है, शॉप्स तक लाना है, ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए वो कौन करेगा? तो उसकी तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि ये हमारे घरों तक, ये हमारी शॉप्स तक, या तो ये ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आता है, या रेल इस्तेमाल होती है, ट्रक्स इस्तेमाल होते हैं, लोड केयर्स इस्तेमाल होते हैं, और इसके बैंकिंग जो है, जो ट्रांजेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पैसों का, तो वो इसमें इन्वॉल्व होती है, वो हेल्प करती है इन दो पहले एक्टिविटी को। ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद बैंकिंग है या फाइनेंस है। तो ये दो एक्टिविटी, यानी कि प्राइमरी और इसके अलावा जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, टेरिशरी एक्टिविटी, उनको हेल्प करती है, उनको मदद करती है। इस तरीके से ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो 50% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, तो वो इसमें डिपेंड करती है एग्रीकल्चर में। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, हमने पढ़ा है, यानी आपने पढ़ा है कि जो जिसके बारे में कहता हूँ कि हिंदुस्तान में तकरीबन 2/3 ऑफ जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के साथ, यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो वो तकरीबन है 60% पॉपुलेशन आती है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे ये सारे कल्चर हैं, ये जो भी कल्चर है एग्रीकल्चर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, वेदर इट इज़ विटीकल्चर, वेदर इट इज़ हॉर्टिकल्चर, वेदर इट इज़ सेरीकल्चर, वेदर इज़ पेसिकल्चर। तो ये सारी कल्चर भी हैं। तो विटीकल्चर के मैंने बताया कि वो कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स के ताल्लुक़ रखता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। हॉर्टिकल्चर पे मैंने आपको बताया कि ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एट्सेट्रा। या सेरीकल्चर में आपने बताया कि रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स हैं, जो कोकून बनाते हैं, एंड जो मलबरी के ट्रीज जो होते हैं उन पत्तों पर उनके पत्ते खाते हैं, उसके बाद सिल्क कोकून बनता है, उसके बाद उन कोकून को हम बॉयल करते हैं, उसके बाद हम एक किस्म की जो है, यानी कि एक किस्म का रेशम जो है फाइबर हासिल करते हैं, उसे कपड़ा बनाते हैं। तो सिल्क वर्म जो है, तो उससे ताल्लुक़ है, जो उसके कहते हैं सेरीकल्चर, उसको उस महकमे को। तो उसके बाद जो पिसिकल्चर आता है कि एक और चीज़ हम करते हैं ब्रीडिंग ऑफ फिश के लिए। हम स्पेशल किस्म के टैंक बनाते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ये टेक्नोलॉजी का। तो हम फिश की जो ब्रीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि इनमें इन टैंक्स को इस्तेमाल करते हैं, इन पॉन्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद से हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए इनको, यानी कि जो फिशेस होते हैं उनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम सेल करते हैं, पैसा हम जनरेट करते हैं, तो उसको पिसिकल्चर कहते हैं। इसके बाद फार्म सिस्टम के बारे में आपने तफसील से पढ़ा कि हम बहुत सारे इनपुट्स यहाँ से देते हैं ज़मीन को, जो हम यहाँ से इसको देते हैं, लेबर देते हैं, सीड्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद लेबर भी हम यहाँ से इसको देते हैं। तो उसके बाद सनशाइन भी इसको मिलता है नेचर से। फिजिकल इनपुट भी के बारे में आपने पढ़ा कि क्लाइमेट है, या रेनफॉल है, या सनशाइन है। तो इसके अलावा जो आउटपुट होता है तो वो क्रॉप्स की शक्ल में हमारे पास आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, इसी केसेस से ये कड़ी है कि ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, इसमें देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग की जो असल में जो मेन काइंड्स है वो इसकी दो मेन काइंड्स हैं। एक तो इसकी होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग। और दूसरों के लिए जियोलॉजिकल जो कंडीशन होती है दोनों के लिए बहुत अहम है कि ज़मीन की जो साख्त है वो कैसी है। जैसी ज़मीन की साख्त होगी, ज़मीन की जैसी बनावट होगी, तो वैसा ही फसल वहाँ से हम ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ही अहम फैक्टर है कि ज़मीन जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि ज़मीन का जो ऊपरी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो वो जैसा ही होगा वैसे ही वो ज़मीन होगी, और उस हिसाब से क्या करेंगे, उस हिसाब से हम उस पर जो क्रॉप्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन होगी वो इस हिसाब से होगी कि ज़मीन की ऊपरी साख्त कैसी है, ज़मीन की ऊपरी बनावट कैसी है, इसकी फिजिकल शेप कैसी है।
तो अगर माउंटेन्स हैं तो वहाँ एक अलग किस्म की वैसे आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। अगर ये प्लेन एरिया है तो वहाँ अलग किस्म के क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं। अगर ये टेरेन एरिया है तो वहाँ अलग किस्म के क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की जो ज़मीन है तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स या प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हुआ कि जो इंसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो जो उसकी ज़रूरत को पूरा करे, जो उसकी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करे, वो अपनी जीवन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए जो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, अच्छी तरीके से गुजार सकता है, अपनी फैमिली को फीड कर सकता है, उसकी परवरिश कर सकता है, उसके लिए यानी कि वो ज़मीन इस्तेमाल करता है। जो ज़मीन वो इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि उससे जो क्रॉप्स पैदा हो जाएं वो अपनी फैमिली को फीड कर सकता है, अपने आप को फीड कर सकता है, अपने जो परिवार है उसको फीड कर सकता है, उसकी परवरिश कर सकता है, उसकी किफ़ालत कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं? व्हेन फार्मिंग इज डन टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली इट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जब ये एक किसान की, एक काश्तकार की या एक जिम्मेदार की या काश्तकार जिसे आप कहेंगे, तो उसकी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करे, उसका जो कुंबा होता है वो इसीलिए मैनली इसलिए क्रॉप्स लगाता है ताकि वो अपनी, क्योंकि ये इसकी बेसिक नीड है, तो वो उसको हासिल करने के लिए ज़मीन को इस्तेमाल करता है। जाहिर सी बात है वो उसने बड़ा एरिया को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अब छोटे से एरिया को इस्तेमाल करेगा। उस पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी वो भी ज़ाहिर सिंपल ही होगी, वो हाथों से उसमें ज़्यादा काम करता है। और इसके अलावा जो घरेलू तौर से साजो सामान वहाँ पर होगा वही इसको इस्तेमाल करता है, कोई हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती है। स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं है, लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और होम जो लेबर होती है यानी कि घरेलू जो अफराद होते हैं वो इसमें हाथ बढ़ाते हैं, वो इसमें काम करते हैं। और इसके अलावा जो प्रोडक्शन आती है तो वो भी लो प्रोडक्शन ही आती है। To meet the needs of the farmers when it is called subsistence farming. In subsistence farming, low levels of technology and household labor are generally utilized. Farming is done on small plots and output is also small. तो आउटपुट भी स्मॉल ही होगा। हमने छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा ले लिया, यानी कि अपनी कुंबे को यानी कि उसमें फीड करने के लिए हमने क्रॉप्स डाले ताकि हम अपने परिवार को जो है उसकी किफ़ायत कर सकें, अपने कुंबे की किफ़ायत कर सकें। तो उसके लिए हम क्या छोटा सा ज़मीन का रुकबा लेते हैं, उस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके वजह से मेनली हम राइस यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो उसके बाद जो आउटपुट होगा वो भी कम ही होगा, वो हम मेनली किस लिए करते हैं ताकि परिवार जो है तो उसकी परवरिश की जा सके। उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब है कि खुद जीवन के लिए यानी कि अपने आप के लिए जो यानी कि जो अपने आप के लिए जो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। Subsistence farming can be further categorized as intensive subsistence farming। तो दूसरा है primitive subsistence farming। तो अब यही है कि subsistence जो फार्मिंग है तो इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है इसका कि वो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरा इसका है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। एक तो है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरा इसका जो हिस्सा वो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसको किसको दो हिस्सों में बांटा गया है, दो हिस्सों में यानी तकसीम किया गया है। एक है सब्सटेंस फार्मिंग को। सब्सटेंस फार्मिंग के जो दो टाइप्स हैं, एक है इसकी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और दूसरी इसकी है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि एक्सटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब है कि इंटेंसली आप बहुत दबाव डालते हैं जमीन पर। इसका मतलब है कि जब आबादी ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है जब आबादी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ज़मीन का रुतबा जो होगा तो वो भी कम ही होगा। आप ज़मीन के रुतबे कम ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन का दबाव होता है वहाँ पर, इसीलिए इसको इंटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है। तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स a small plot of land। तो यहाँ भी क्या होता है, इंटेंसिव जो सब्सटेंस फार्मिंग है इसमें भी फार्मर जो होता है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड का इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गुंजान आबादी होती है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। इस वजह से ज़मीन का भी ज़मीन ज़्यादा हिस्सा आएगी कम आएगी। जहाँ पर ज़्यादा आबादी होगी तो वहाँ पर ज़मीन भी आपके हिस्से में ज़मीन कम ही आएगी खेती बाड़ी के लिए। तो स्मॉल प्लॉट लैंड इस्तेमाल होता है।
यूज सिंपल टूल, जैसे कि इसमें ऊपर में इस्तेमाल होता है, इसमें भी सिंपल टूल इस्तेमाल होते हैं, कोई हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि जो घरेलू तौर आपको जो वहाँ पर सामान मैसर होता है वही आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा मोर लेबर, इसका मतलब कि जो घरेलू लेबर होती है वो भी इसमें इस्तेमाल होती है। फर्टाइल सॉइल, उसके लिए जरखेज ज़मीन होनी चाहिए। लार्ज डेज ऑफ सनशाइन, जहाँ पर काफ़ी देर तक सूरज की रोशनी पड़ती हो, तो क्योंकि इसके लिए सनशाइन भी काफ़ी ज़रूरी है, तो वहाँ पर ये उस ज़मीन उसको सेलेक्ट किया जाए, उस हिस्से को सेलेक्ट किया जाता है। फेवरेबल क्लाइमेट, और क्लाइमेट जो होना चाहिए वो इसके लिए मौजू होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, जिस पर जहाँ पर हम ये ग्रो कर सकें। एबल टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, तो कम से कम साल में एक से ज़्यादा फसल हासिल करें, कम से कम साल में हम एक से ज़्यादा फसल हासिल करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग में। तो राइस इज द मेन क्रॉप इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सबसे जो मेन क्रॉप होता है, वो मेन क्रॉप होता है वो राइस से होता है, क्योंकि अक्सर हम मोस्ट इसको ग्रो करते हैं इसलिए कि फैमिली को फीड करना है। जो उसका कुंबा होता है, जो घर का हेड होता है, उसका मेन एम होता है कि वो घर के परिवार जो है उनको पहले क्या है कि वो ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको वहाँ पर जो क्रॉप चाहिए। तो मेनली क्या होता है, मेनली हम यहाँ पर ग्रो करते हैं राइस ही मेनली यहाँ पर ग्रो किया जाता है। किसमें? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्रॉप इज द मेन टाइप, राइस इज द मेन क्रॉप इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। उसके बाद वीट भी हासिल कर सकते हैं, या कि साल में हम एक से ज़्यादा फसल हासिल कर सकते हैं, वीट भी हासिल कर सकते हैं, पल्सेस भी इसके अलावा हासिल कर सकते हैं, मेज भी हम इससे यहाँ हासिल कर सकते हैं, और ऑयल सीड जो है वो भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं हम। और आल्सो ग्रोन इससे, क्योंकि ये मॉनसून रीजन इलाके होते हैं तो वहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फेवरेबल क्लाइमेट होता है। और इसके अलावा ज़मीन जो जरखेज़ होनी चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर हाउस होल्ड लेबर होता है वो इस्तेमाल होता है, और मोस्टली जो हाउस होल्ड जो टूल्स होते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं होता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर किया जाता है। इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि इस पर आबादी का ज़्यादा दबाव रहता है, जिसकी वजह से जो ज़मीन का हिस्सा वो कम हिस्से, ज़मीन कम हिस्से में हमारे हिस्से में कम ही आती है, तो उसी स्मॉल प्लांट लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं। मेनली हमारा पर्पज़ होता है टू फीड आवर फैमिली मेम्बर्स एट दैट टाइम। उसके बाद होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ही है, प्रिमिटिव का मतलब ये है पुराना, प्रिमिटिव का मतलब है पुराना। तो पुराना का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो ज़मीन ऑलरेडी आपके पास होती है, ये ज़मीन जो आपके पास थी, तो पुरानी ज़मीन पर आप क्या करते हैं कि जब एक बार आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद आप उसको वहाँ पर 1 या 2 साल के लिए एम्बेडेड रखते हैं। उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, कोई और जगह आप सेलेक्ट करते हैं, वहाँ आप क्रॉप्स लगाते हैं। उसके बाद 1 या 2 साल के बाद आप फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ताकि इसमें फिर जो फर्टिलिटी होती है वो इसमें आ जाती है, फिर को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको प्रिमिटिव फार्मिंग कहा जाता है, क्योंकि आपने उसी लैंड को दोबारा इस्तेमाल किया, जो आपने पहली लैंड आपकी जो थी उसने आपने उसको 1 या 2 साल या 3 साल तक आपने उसको बेकार रखा, फॉर एग्जाम्पल, या 6 महीने तक आपने उसको बेकार रखा। उसके बाद दोबारा से आप आ गए, इसलिए यहाँ पर दोबारा से आपने यानी कि क्रॉप्स हासिल किए, या दोबारा से इसको इस्तेमाल किया, एक जगह एक मतलब इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल किया, तो दैट्स कॉल्ड कि आपने पुरानी ही ज़मीन को बुरा इस्तेमाल किया, कुछ वक्त के लिए आपने इसको वहाँ पर यानी इस तरीके से छोड़ा था, बेकार छोड़ा था, तो उसी को कहते हैं कि प्रिमिटिव का मतलब यह पुराना किया, उसे आपने उसे पुरानी ज़मीन को ही इस्तेमाल किया। दोबारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक। यहाँ पर तो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें आता है नोमैडिक, दूसरा इसमें आता है नोमैडिक। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज। तो यहाँ भी क्या होता है कि जंगल के आसपास जो एरिया, जंगल के आसपास जो लोग होते हैं, तो जंगल काफ़ी घना होता है, ये अक्सर वहाँ पर घने जंगलों में ऐसा होता है कि जहाँ पर काफ़ी घने जंगल होते हैं, वहाँ आसपास जो लोग होते हैं वो खेती बाड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी क्रॉप्स हासिल करने हैं, किस तरीके से अपनी फैमिली को फीड करने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये होते हैं, ये जो किसान यहाँ पर होते हैं, तो वो यानी कि जंगल के थोड़े से एरिया को क्या कहते हैं, स्मॉल प्लॉट ऑफ जो लैंड हो, उसमें जो ट्रीज होते हैं उनको फेल करते हैं, यानी कि या तो उनको काट देते हैं, उनको वहाँ एक ज़मीन का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको खाली कर देते हैं, और प्लांट्स को वहाँ पर काट देते हैं। उसके बाद उस ज़मीन के हिस्से पर क्या करते हैं, उसको प्लांट्स यानी कि
गिराने के बाद या प्लांट्स काटने के बाद उनको जलाया जाता है, उनको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो वो जो जब वो राख यानी कि जो राख होती है उनकी, तो उसके बाद वो राख उसी ज़मीन में डाली जाती है, चाहे वो उनके पत्ते हों चाहे उनकी शाखें हों, पूरे उस प्लांट्स को जलाया जाता है। उसके बाद उनकी जो राख होती है तो वो किस में मिक्स हो जाती है, तो वो किस में, वो अर्थ में ही मिक्स हो जाती है, अर्थ में ही डालते हैं ताकि उसमें फर्टिलिटी आ जाए दोबारा से। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या इसको बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है इसलिए, या इसको स्लैश एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो फिर से देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्मॉल पैच ऑफ लैंड इज क्लियर बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम, देन द एशेस आर मिक्सड विद द सॉइल, यानी कि जो राख इसकी होती है तो वो एशेस जो होती है तो वो उस सॉइल में मिक्स की जाती है। सीड्स आर ब्रॉडकास्ट, उसके बाद सीडों को फैलाया जाता है, फेंका जाता है। उसके बाद या फैलाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारी एक जगह फेंका जाता है, सीड्स को फेंका जाता है इस लैंड पर। द पैच ऑफ लैंड इज लेफ्ट टू फॉलो फॉर कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों के लिए उसको यानी कि लेफ्ट किया जाता है। फार्मर्स मूव्स टू ए न्यू प्लांट, उसके बाद एक जगह यानी उसको यानी कि एक बार इस्तेमाल करके वो इसको बना रखता है, तो उसके बाद वो दूसरी जगह जाता है, तो एक साल या 2 साल के बाद दोबारा वापस आ जाता है, उसके बाद उसको दोबारा इस्तेमाल करता है। इट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ पर ज़्यादा गुंजान आबादी होती है वहीं पर ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वहीं पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पर आपको जंगल का कोई हिस्सा जो है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको प्लांट्स काटने पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे हम एरियाज इन अमेज़न बेसिन में देखेंगे तो यहाँ अमेज़न बेसिन में ऐसा होता है। इसके अलावा ट्रॉपिकल अफ्रीका में यानी कि ऐसा ही होता है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में ऐसी किस्म की फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। उसके नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ भी इस किस्म की फार्मिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो यह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आई थिंक यू हैव बेटर अंडरस्टैंड इट। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे एक और, नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग, तो नोमैडिक हर्डिंग क्या है? नोमैडिक का मतलब है बंजारे, या नोमैडिक का मतलब है चरवाहे, यानी कि जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने हर्ड्स के साथ, अपने जोनों के साथ। whether they are cows, whether they have cows with them, whether they have goats with them, whether they have camels with them, whether they have yaks with them, whether they have oxen with them, so they have a herd with them। एक झुंड उनके पास होता है, और वो उनको क्या कहते हैं, वो उनको पास्चर्स में ले जाते हैं, घास चरने के लिए उनको ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अक्सर इनको ले आया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर सेमी एरिड या एरिड रीजन्स होते हैं, या तो ये पूरा कोई खुश्क सूखा हुआ इलाका होता है, या तो आधा ही सूखा हुआ इलाका होता है। वहाँ पर ये इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और इनका पर्पज़ होता है कि इनको वहाँ से घास वास खिलाया जाए इन जानवरों को, क्योंकि इनके जो जानवर होते हैं वो इनकी इनकम का बायस बनते हैं, क्योंकि इन जानवरों से बहुत सारी चीज़ें इनको हासिल होती हैं। इन जानवरों से मीट हासिल करते हैं, और इन्हीं जानवरों से वो वूल भी हासिल कर सकते हैं, और इन्हीं जानवरों से वो मिल्क भी हासिल करते हैं। और इसके अलावा हाइड्स भी जानवरों से हासिल की जाती हैं, उनको सेल किया जाता है, और उसके बाद उस जो आमदनी वहाँ से आती है उस पर ये अपना गुजारा करते हैं। तो यही कहते हैं, यही हो गए नोमैडिक हर्डिंग। तो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा डेजर्ट्स पर यह किया जाता है। इस तरीके की हमें देखने को मिलती है, इस तरीके की नोमैडिक हर्डिंग जो हमें इन एरियाज में देखने को मिलती है, सहारा डेजर्ट्स में, सेंट्रल एशिया में हम ऐसा देख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम इसको देख सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे हिस्सों में देख सकते हैं। राजस्थान में हम देख सकते हैं, राजस्थान जो है इंडिया का एक हिस्सा है, लेकिन इंडिया के इलाके में देख सकते हैं। और इसके अलावा JNK में भी हम इसको देख सकते हैं। JNK में भी ऐसा है, यानी कि ये जो नोमैडिक लोग होते हैं ये अपने हर्ड्स के साथ, या राजस्थान में या बिहार में ये अपने हर्ड्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते हुए आपने देखे भी होंगे। यानी कि ये जो इनके जो गोट्स होती हैं, या शीप होते हैं, या कवज होते हैं, या कैमल्स होते हैं, या याक होते हैं, उनका एक झुंड होता है, तो उस झुंड की रखवाली ये करते हैं। और इनके साथ रखवाली करने के लिए कभी डॉग्स भी होते हैं, जो आपने अपनी आंखों से भी देखे होंगे। कश्मीर में भी देखे जा सकते हैं, राजस्थान में भी इनको देखा जा सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स जो हैं सेमी एरियाज में जो है अक्सर इन लोगों को देखा जाता है, नोमैडिक हर्डिंग को देखा जाता है। तो उसके बाद जो मवेशी इनके साथ इनका होता है कि ये उनको फूडर प्रोवाइड करते हैं, अपने मवेशियों को फूडर प्रोवाइड करते हैं।
तो वो बदले में इनको क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं, हाइड्स देते हैं, उनके चिकन को सेल के करते हैं। उसके बाद जो इनकम वहाँ से आती है, जो पैसा आता है, तो उसको ये अपने यानी कि अपने बच्चों पर या अपनी फैमिली पर इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उसको हम कहते हैं एक किस्म की यानी कि नोमैडिक हर्डिंग उसको कहा जाता है। तो ये था पूरा इसके मुताबिक टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक होती है, दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इसके दो टाइप्स निकलते हैं, एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी इसकी होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर हम पढ़ते हैं इसी के अंदर में जो है वो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक कल्टीवेशन। या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने दूसरा पढ़ा था, इसके साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी पढ़ा, और इसके बाद प्रिमिटिव जो फार्मिंग है तो वो भी हमने पढ़ा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हमने पढ़ा, और इसके बाद नोमैडिक हर्डिंग जो है वो भी हमने पढ़ा। ये उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक्स फॉर टुडे।